because we all are writers here, authors here, poets here, thinkers here. The work, the role of a writer is not to say what everybody can say, but to say something that somebody is unable to say. So, first of all, I feel it's an honor in itself for me to speak to words in front of so many authors, thinkers, and philosophers who are famous worldwide. So यहाँ पे मुझे दो शब्द बोलने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं नितिश sir की like I'm very obliged to you, sir. Thank you so much for this opportunity. I'm really obliged. So starting from, I need to give my introduction because इतने बड़े लोगों के सामने बात करके पसीना छूट रहा है. So I'm Adya Chaudhary. I study in 9th standard in Notre Dame Academy. Recently, I'm very pleased to share this piece of news with all of you. I recently got my first fictional contemporary theme-based novel published under the title The Golden Heiress, which comprises of 200 pages and 6 chapters. So, इसमें 200 पन्ने हैं, इसमें 6 चैप्टर्स हैं और ये कंटेम्प्रेरी फिक्शनल थीम बेस्ड नॉवेल है जो कि एक 13 वर्षीय नंदिनी, एक 13 वर्षीय लड़की नंदिनी के इर्द गिर्द बनी हुई है. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं बस आपको इस कहानी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी. So, नंदिनी का जो परिवार है वो एक जमींदार परिवार है, अफ्लुएंट जमींदार परिवार है. उनके फैमिली में ट्रेंड रहा है कि जो पहला बच्चा पैदा होगा वो बेटा होगा. एंड अकॉर्डिंग टू प्रीमोजेनिचर, इफ यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, अकॉर्डिंग टू प्रीमोजेनिचर जो पहला बेटा होता है वो सब कुछ इनहेरिट कर लेता है. अब ट्विस्ट कहानी में तब आता है जब 11th जनरेशन में नंदिनी पैदा होती है और अपने 13 साल होने के बाद भी वो अपने परिवार में एक लौती बच्ची रहती है. अब ट्विस्ट तब आता है जब पूरे सोसाइटी में कंस्पिरेसीज फैलता है कि अब ये इनके पास जो इतने प्रॉपर्टीज हैं, 2000 बीघा जमीन है, ये जाएगा तो जाएगा इसके पास, क्योंकि हमारे सोसाइटी में तो बेटियों को बकाया धन माना जाता है, तो आखिर वो जाएगा तो जाएगा कहाँ. मैंने खुद भी किसी कहीं कुछ लेवल तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, काफ़ी बातें सुनी हुई है. तो वहीं से I'm really thankful today sitting here. I think I'm really thankful to all those people जिन्होंने कहा कि तुम तो लड़की हो, तुम्हें एक ही शादी ब्याह करके चले जाना है. I'm really thankful to them जिन्होंने मुझे ये कहा, जिन्होंने मुझे उड़ाना दिया. And coming to the point, coming to the story, ये स्टोरी में मिथिलांचल विवाह का भी जिक्र किया गया है, जो कि बिहार अपने इस कल्चर के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है. सो इसमें मिथिलांचल विवाह का भी जिक्र है. कल मेरा ऑल इंडिया रेडियो पे एक छोटा सा इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने, आप सब जानते होंगे, राजी का बहुत फेमस गाना है दिलदारो, तो उसकी 2 पंक्तियाँ हैं. फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है और बेटियाँ जो ब्याही जाए मुमकिन नहीं है. तो अभी तक तो ये गाना, ये 2 पंक्तियाँ सुनकर लोग रोते हैं, पिता रोते हैं, बेटियाँ रोती हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आप मेरी किताब को पढ़ते हैं उसके बाद इस पंक्ति का जो डेफिनेशन होगा, आई एम श्योर वो आपके लिए चेंज हो जाएगा. सो ये बुक Amazon पे अवेलेबल है एंड आई विल बी रियली obliged if you promote my novel in whichever way you can. So thank you very much. There are thousands of issues to be dealt with. For once, you can't sit and have rest even for a bit. Mind all muddled up with varieties of thoughts, perturbed by the insecurities, despair, pressure, which stresses up a lot. Sometimes there is complete lack of hope and no way out. This messed up world plays games and you have nothing but to fight. Challenges, loops, high demands and great expectations, no less but life-changing decisions, high competition and aggravating conditions. All test your patience, potential, personality and disposition. Circumstances get worse when even the fate gets unfavorable. It's horrible to get through knowing the life is too unpredictable.
No wonder what's gonna unfold the very next moment, whether you will rise up and touch the sky or the life would turn, twist or bend. Each phase brings up extra load with itself. Each stair you climb will have thousands to pull you backwards. Surrounded all around by mud, but still blooming as elegant and beautiful as a lotus, will need all your effort, hard work and focus. Thank you so much. Also, I would like to say one more thing. Since ये एक कोट है, कोट नहीं, ये एक पूरा लेक्चर है जो कि मुझे एक बहुत प्रोमिनेंट आदमी ने बताया, एंड आई थिंक इट्स रियली वेरी एक्यूरेट, क्योंकि यहाँ पे हम सभी साहित्य से जुड़े लोग हैं. मैंने तो अभी बस स्टार्ट किया है, बट आई हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ऑल द पीपल हु हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस हियर. सो मुझे किसी ने कहा था कि जब भी इस दुनिया में डोलड्रम्स आते हैं, जब भी प्रॉब्लम्स होती है, जब भी ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जब पूरी दुनिया मिक्सड होती है, इस टाइम पे आईटी वाले लोग, स्टेम वाले लोग, ये सब जो है ये कुछ नहीं कर पाता. अगर कोई कर पाता है तो वो फिलोसफर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं. आप देखिए एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, सब टाइम पे जब भी डोलड्रम्स आया है, जब भी सोसाइटी किसी प्रॉब्लम से गुजरा है, पूरा जब वर्ल्ड एकदम मेस्ड अप है, तो फिर राइटर्स ही उठ के खड़े होते हैं. डेमोक्रेटस, कन्फ्यूशियस, लॉर्ड बुद्धा, सूफी सेंट्स, महावीरा, प्रेजेंट के टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं इन्हीं के फिलॉसफी से हम आगे बढ़ते हैं. अभी के टाइम पे, अभी प्रेजेंट सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. टीनेज को लेके प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है. तो मेरी ये फर्स्ट नॉवेल है और ये एक सीरीज के अंतर्गत आती है जिसका नाम है दी सोशल डायलेमा सीरीज. और मेरी नेक्स्ट नॉवेल का जो टाइटल है वो मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, विच इज़ लेडी वर्सेस ब्यूटीफुल लेडीज, जिसमें मैं एंजाइटी, डिप्रेशन, टीनेज प्रॉब्लम्स को कवर करने की कोशिश करूँगी. एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर द ब्लेसिंग्स आई एम रिसीविंग. आई एम रियली थैंकफुल फॉर माई डैड, बिकॉज अभी लोग बोलते हैं कि मेरे को कई जगह से अभी भी सुनने को मिलता है कि आप अभी आपका बोझ सारा है, आप ये कर रहे हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सब आपको करने से कुछ नहीं होगा, आर्ट का कुछ वैल्यू नहीं है. आई वुड लाइक टू से आर्ट मे नॉट बी द ब्रेड ऑफ माई लाइफ, बट इट इज़ द वाइन ऑफ माई लाइफ. और वाइन ब्रेड से बहुत ज़्यादा महंगी होती है. तो जिनके पास वाइन नहीं है, आप ब्रेड में खुश रहिए. मेरे पास वाइन भी है और मेरे पास ब्रेड भी है, तो आई एम रियली हैप्पी विद दैट. So I think मेरे डैड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मॉम ने सपोर्ट किया है. आई एम रियली थैंकफुल. इनफैक्ट मेरे दादाजी, उनको भी काफ़ी कुछ सुनने को मिलता था कि बिकॉज आई एम ऑल्सो सिंगल चाइल्ड. मैं अपने ग्रैंडफादर जो कि लास्ट ईयर गुजर गए, ही वॉज रियली क्लोज टू मी, आई वॉज रियली अटैच टू हिम. उनको मैंने ये किताब समर्पित किया है. एंड इफ ही इज़ वॉचिंग, लाइक अगर वो मुझे कहीं से देख रहे, आई थिंक ही मस्ट बी प्राउड ऑफ मी टुडे. So I'm really thankful to Nitish sir क्योंकि उन्होंने मुझे इतना बड़ा opportunity दिया. Everyone who has been supporting me, thank you so much. Alright, there's one more thing. I'm so sorry. I would like to give my book to this one. It's available on Amazon, however, but I would like to give one copy to everyone present here. So is that fine? Okay, yeah. वो हम कर लेंगे. तो इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आओ. देखिए बहुत स्मार्ट है, मैं इसको बहुत ध्यान से सुन रहा था. इसको पता है कि ये बुद्धू है, इसको कोई कुछ बोलेगा नहीं. कहीं तरह भागो मत, है ना. इसने इसका फायदा क्या उठाया, इसने पूरी बात रखी, पेट भर के पूरी बात रखी अपनी. इतना किसी ने शायद नहीं बोला होगा अब तक. तुम्हारे बोलने की कला मुझे बहुत अच्छे लगे. मैं सामने से आपको एक चीज ऑफर कर रहा हूँ कि मेरे जितने शोज होंगे ना, अगर आपको कभी भी आपको लगेगा कि यू वांट टू होस्ट माय शो, आई विल गिव यू माय माइक. ठीक है. वो वंडरफुल, वो भी 9th क्लास में. ये बड़ा एग्जांपल होगा. पहली बात जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, इतना ही मैं कर सकता हूँ. दूसरी बात ये कि जो इन्होंने बोला, जो उन्होंने उसमें मुझे गूज़बम्स आ रहे थे. ठीक है ना, क्योंकि जो टॉपिक है ना, जो आप समझ रहे होंगे, ये टॉपिक की बहुत सेंसिबल है. मेरी जब बेटी भी थी, आई वॉज द हैप्पीएस्ट फादर. मैं मेरी वाइफ बहुत खुश थे. लेकिन समाज, किसी को प्रणाम करने दीजिए, बुजुर्ग, एक बेटा आ गया, उसमें लगता था मुझे, मैं एटीएम थोड़ी हूँ, मैं खुश हूं ना. तो ये समाज में आज भी ये चीज है. और
इसको पता नहीं कब तक रहेगा। दो चीजें, एक तो डॉरिंग सिस्टम, दूसरा ये बेटा बेटी वाला चलता रहेगा। बट पीपल लाइक यू आर देयर, उसको और अच्छे से सटायर्स लिखो, बोलते रहो, लिखते रहो।